What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Sunday, 28th of June, and the previous trading session was on Thursday, which was Sensex monthly expiry. And the monthly expiry, of course, lived to its expectation, and it was a super volatile expiry. The markets opened with a gap up, but there was a massive crush in the straddle premiums. Straddle premium 310 rupees pe open hua, that too on a monthly expiry. And this 310 rupee ka straddle premium, it is probably the lowest since February end, since this geopolitical conflict started. With just 300 rupees straddle premium, the markets moved 500 points towards the upside, gave a fake breakout, and then got dumped almost 800 points. So total 1300 point ka swing market karta hai with just 300 points of straddle premiums. And the funny thing is, the straddle opened at 300 and till 245 the straddle was still trading at 150 rupees. Matlab almost last 45 minutes tak the straddle retained 50% of its value because of how the day played out, and we kind of planned for this kind of a day because iske pehle last 2 दिन proper trending day tha, ek din proper downtrending day tha, and then the next day it was a proper uptrending day, and we did probabilistically estimate and guessed that today's expiry is going to be volatile. First thing is it used to be a monthly expiry, and the second thing is दो ट्रेंडिंग दिन होने के बाद तीसरा ट्रेंडिंग दिन आना काफी अनलाइकली हो जाता है, तो we kind of expected that this gonna be the case. And Nifty also kind of trapped the bulls. 24,200 के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया, 50 पॉइंट्स ऊपर गया, एंड वहां पे सारा लिक्विडिटी को ऑब्जर्व करके द मार्केट्स ऑलमोस्ट गॉट सोल्ड बाय 200 पॉइंट्स. बट वन गुड थिंग इज दैट इन स्पाइट ऑफ दिस सेल ऑफ, इंडिया विक्स गॉट क्रश्ड. 2.5% लो ही इंडिया विक्स क्लोज हुआ है, एंड अनदर कंसोलेशन इज निफ्टी इज स्टिल अबाउट 24,000 levels. But in spite of this long weekend, Nifty straddle closed at 205 rupees, which I feel again underpricing of risk because 3 दिन था and बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रहा है, but the market is expecting no surprises whatsoever, and most probably when the market opens tomorrow, most probably the straddle would open at somewhere around 170ish. So tomorrow again 1DT on Nifty ahead of Nifty's monthly expiry, and expect some amount of trapping on both the sides because last दोनों एक्सपायरीज निफ्टी के जो हुए हैं 24,000 के अराउंड ही हुआ है, एंड कंसिडरिंग वेयर निफ्टी इज टुडे विच इज समवेयर अराउंड 24,050, most probably the monthly expiry is also going to happen somewhere around 24,000 levels unless we see a breakout above this local maxima which is 24,250. So let's get to the terminal and let's plan for tomorrow. All right. So positionally speaking, this candle is not so encouraging for the bulls because यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास, लोकल मैक्सिमा के आसपास एक रिजेक्शन कैंडल बन गया है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सप्लाई यहाँ पे आया है, एंड इट ऑल्सो इज़ अ क्लियर कट बुल ट्रैप. यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट सा दिया था इंट्राडे में, स्पेशली ऑन द सेंसेक्स मंथली एक्सपायरी, एंड मार्केट्स नीचे आया है. नाउ वी हैव टू वेट एंड वॉच वेदर दिस डाउन मूव जो आया है, इज इट बिकॉज ऑफ द सेंसेक्स एक्सपायरी रिलेटेड फ्लोस और वेदर दिस विल बी एक्टिंग एज सम सॉर्ट ऑफ लोकल टॉप फॉर फोर्सिएबल फ्यूचर. नाउ अभी हमारा जो लोकल रेजिस्टेंस था जो प्रीवियस 24,200 के आसपास था, अब हमको रिवाइज करके 24,250 के आसपास देखना पड़ेगा, एंड जैसे मार्केट 24,200 के ऊपर एक क्लोज दे देता है तो देन द नेक्स्ट स्टॉप वुड बी आइडियली समवेयर अराउंड 24,600 लेवल. नाउ यहाँ पे लोअर टाई साइड में भी थोड़ा डाउन साइड भी लिमिटेड मुझे दिख रहा है बिकॉज 23,800 के आसपास यहाँ पे मार्केट्स ने सपोर्ट लिया है, एंड यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन जो कैंडल बना है विच वुड बी एक्टिंग एज अ डिसेंट अमाउंट ऑफ सपोर्ट. एंड in spite of this sell off 200 points का जो sell off आया है, in spite of that you can notice that India VIX has gotten crushed. 2.5% डाउन ही इंडिया विक्स ट्रेड कर रहा है, तो 13 के आसपास इंडिया विक्स ट्रेड कर रहा है. सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. ऑफ कोर्स यहाँ पे मार्केट्स ऊपर जाने से पहले मार्केट्स को हल्का होना है. यहाँ पे मार्केट्स चॉप करेगा, एंड बहुत सारे लोगों को ऊपर नीचे आगे पीछे स्टॉप लॉस लेके वंस पीपल आर लाइक ओके मार्केट्स कहीं नहीं जाने वाला है, इट्स जस्ट लाइक इट्स जस्ट गोना कीप प्लेइंग अस. After that the market will pick a direction. Also ट्यूसडे के दिन निफ्टी का मंथली एक्सपायरी है, एंड एक्सपायरी रिलेटेड फ्लोज काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, रोल ओवर पोजिशंस रोल ओवर होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगे. तो वंस प्रोबेबली द मंथली एक्सपायरी इज ओवर, देन प्रोबेबली द मार्केट्स माइट ट्राई टू फाइंड इट्स नेक्स्ट डायरेक्शन. ठीक है. सो नाउ you can notice that the higher probability of the market move is towards the upside. When I say upside, it might not be like a crazy strong bullish candle or something, but at least the market has to slowly start grinding towards the upside. Because या आप देख सकते हैं कि like India VIX वापस 13 के आसपास आ चुका है, and crude oil is also pre
जो वॉर लेवल से उसके आसपास आ गया है, ऑलमोस्ट 9,800 9,900 के आसपास जो ट्रेड कर रहा था क्रूड ऑयल, नाउ इट इज बैक टू 6,500, ऑलमोस्ट 35-40% ऑलमोस्ट क्रश हो चुका है. सो things are looking, ideal for the bulls now, but again I'm not expecting sudden like upside वाला spike नहीं expect नहीं कर रहा हूँ. Also like weekend पे एक rumor भी आ गया कि there might be some sort of a cabinet reshuffle where they're expecting the finance minister to change. Now if finance minister changes, I don't know like how the market perceives it, but of course as traders we would definitely rejoice, we would definitely celebrate the change in finance ministry, that's for sure, because बार दो बार लगातार STT को बढ़ाया गया है, मार्केट्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैंगुलेट कर दिया गया है. सो for traders it was not a friendly finance ministry, so definitely I feel that the markets might celebrate the change in the finance ministry, but of course how much of that would be converted or discounted by price I'm not sure, but definitely sentiment जो है थोड़ा बहुत positive turn हो सकता है. ठीक है, now to talk about straddle, as I said, in spite of that fall, the straddle is just at 208 rupees. You can notice that how underpriced the current straddles are. 24,050 से पहले मार्केट 200 पॉइंट्स अपसाइड गया. यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि लाइक आई विल गो टू द लोअर टाइम फ्रेम एंड आई विल शो यू. सो मार्केट्स यहाँ से 24,100 से लेके 24,250 तक गया, 150 पॉइंट ऑफ अप मूव, एंड देन 260 से लेके 24,050 200 पॉइंट ऑफ डाउन मूव. तो ये जो 200 पॉइंट का जो मूव है ये आया है ऑलमोस्ट इन 3 आवर्स. 3 घंटे में मार्केट्स ने 200 पॉइंट का मूव ऑलरेडी कर चुका है. बट इन स्पाइट ऑफ दैट द मार्केट इज प्राइसिंग 200 रुपीज वर्थ ऑफ स्ट्रैडल फॉर द नेक्स्ट 4-5 days ऑफ रिस्क. ऑलमोस्ट थर्सडे के बाद फ्राइडे हॉलीडे था, फ्राइडे सैटरडे संडे का जो अनसर्टेनिटी था, वीकेंड का अनसर्टेनिटी वो, देन मंडे का 1DT का रिस्क एंड एक्सपायरी, सब मिला के मार्केट्स ने 200 रुपीज़ का स्ट्रैडल जो प्राइस कर रहा है. आई ट्रूली बिलीव दैट दिस इज डेफिनेटली नॉट द मार्केट्स फॉर प्रीमियम हार्वेस्टर्स जो रिस्क प्रीमियम हार्वेस्ट करते हैं, शॉर्ट वॉल ट्रेड करते हैं, वॉलिटिलिटी क्रश के लिए ट्रेड करते हैं, टीटा डीके के लिए ट्रेड करते हैं. दिस इज डेफिनेटली नॉट अ मार्केट फॉर दिस. सो टुमारो irrespective of where the straddle is going to open, don't try to short the walls, don't try to short the premiums. डेफिनेटली वेट फॉर द प्राइस एक्शन, एंड प्राइस एक्शन के आसपास मार्केट आता है तो भी ट्रेड इधर डेबिट स्प्रेड्स और ट्रेड वर्टिकल स्प्रेड्स. नॉर्मल प्रीमियम शॉर्ट करने से आपको कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं. द रिस्क रिवॉर्ड इज डेफिनेटली स्क्यूड अगेंस्ट यू. आप देख सकते हैं कि लाइक मान लो कि 24,000 के आसपास मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, 24,000 के आसपास मार्केट ओपन हुआ एंड आप 160-170 रुपीज़ पे आप स्ट्रैडल को शॉर्ट करोगे. लुक एट द कवरेज दैट स्ट्रैडल इज गोना गिव यू. आपको कवरेज ही नहीं मिलता है स्ट्रैडल को ट्रेड करने से. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लो है 23,800 के आसपास लो है. यहाँ पे 200 पॉइंट्स का एक स्पेस है मार्केट्स को मूव करने के लिए, एंड यहाँ पे 250 पॉइंट्स का स्पेस है मार्केट को मूव करने के लिए. एंड ये जो टोटल 500 पॉइंट का जो स्विंग है, 450-500 पॉइंट का जो स्विंग है वो आया है इन लेस देन 2 ट्रेडिंग सेशंस. 2 ट्रेडिंग सेशंस में आया है ये जो 450 पॉइंट का स्विंग, एंड हम लोगों को मिल रहा है 170 पॉइंट्स फॉर द नेक्स्ट 2 सेशंस. तो 450 पॉइंट्स का स्विंग जो लास्ट 2 दिन में किया है, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग दैट मार्केट्स अभी 100-150 पॉइंट्स पे अगर स्विंग नहीं करेगा, एंड इफ यू वांट टू बेट दैट, बी माई गेस्ट, बट डेफिनेटली trading straddles or strangles tomorrow and day after tomorrow would be plain stupidity. So again, markets कल क्या कर सकता है we don't know, but as far as GIFT Nifty is concerned it is showing somewhere around 24,000 open. 24,000 के आसपास ही मार्केट्स कहीं ना कहीं दिख रहा है. So expect markets to not breach this level. ये जो लेवल है वो कल के लिए मेरे लिए एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन जाएगा. तो अगर मार्केट 24,000 के नीचे स्लाइड करना शुरू करेगा तो आइडियली इसके ऊपर ही मार्केट्स को सपोर्ट मिल जाना चाहिए, एंड यहाँ पे हम लोग एक मीन रिवर्शन ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं. एंड एट द सेम टाइम मैं एक मीन रिवर्शन ट्रेड यहाँ पे प्लान करूंगा 24,200 के आसपास ही. लाइक आई विल डिस्काउंट दिस फॉर टुमारो बिकॉज मार्केट्स ये जो लेवल है, इस लेवल जो था, ये लेवल, दिस वाज अ रेजिस्टेंस, एंड इन लेवल्स को मार्केट पर्पसली तोड़ा है टू ट्रैप द लिक्विडिटी. यहाँ पे बुल ट्रैप करने के लिए ही मार्केट्स को 50-60 पॉइंट्स ऊपर जाना पड़ा है. तो आई वुड ट्राई टू शॉर्ट द मार्केट समवेयर अराउंड 24,200 लेवल्स इफ इट कम्स टू दैट टुमारो. ठीक है, तो इन बोथ द केसेस, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी, जहाँ पे भी मैं मीन रिवर्शन ट्रेड इनिशिएट करूंगा, इन बोथ द केसेस मेरा ट्रेड स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, वो वर्टिकल स्प्रेड होने वाला है. वर्टिकल स्प्रेड, it can be credit spread or it can be debit spread, doesn't matter. We are in such VIX environment, volatility environment where credit spreads and debit spreads में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है.
आपको स्क्यूज ट्रेड करने के लिए ओटीएम्स पे इतना ज़्यादा प्रीमियम्स नहीं है. तो इफ़ यू वांट टू एक्चुअली बेट ऑन द डेल्टा मूव देन ट्रेड विथ स्प्रेड्स. ठीक है, नेकेड ऑप्शन शॉर्ट मत करो. प्रॉबली अ बेटर आइडिया वुड बी टू एक्चुअली लॉन्ग ऑप्शंस. मान लो यहाँ पे आप नेकेड पुट भी करोगे, दैट इज मच बेटर देन शॉर्टिंग नेकेड कॉल्स इन माय ओपिनियन. बट ऑफकोर्स नेकेड ऑप्शन बाई करना मेरा प्रेफरेबल मोडस ऑपरेंडी नहीं है. तो इफ आई वॉन्ट टू गो लॉन्ग ऑप्शंस आई वुड गो यूजिंग डेबिट स्प्रेड्स. तो कल के लिए डेबिट रेशियोज मत बनाओ. डेबिट रेशियोज बनाने से कोई फायदा नहीं है, बट डेबिट स्प्रेड्स आप डेफिनेटली बना सकते हैं. मार्केट्स यहाँ पे आता है ना, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 24,200 का कॉल शॉर्ट कर सकते हैं एंड 24,250 कॉल्स को इसको शॉर्ट किया एंड 24,250 या 24,300 कॉल्स को यहाँ पे बाई कर लिया. तो इससे क्या होता है, अगर मार्केट मान लो गलती से 24,200 पे आपने एंट्री ले ली है एंड मान लो गलती से मार्केट यहाँ लेवल इस लेवल तक भी आ गया ना, तो देन ऑल्सो लाइक आपका जो स्टॉप लॉस हंट नहीं होता एंड यू कैन कैरी फॉरवर्ड दैट पोजीशन. बट इन एनी केस मेक श्योर दैट योर मैक्सिमम लॉस इज ओनली 0.5% और लेस देन दैट. ऑफकोर्स लाइक ये जो रिस्क है वो मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ. अगर आप if you're used to taking higher variance and higher risk per trade, be my guest, but make sure that आपको जो max loss है वो आपका रिस्क लिमिट के अंदर ही है एंड अंदर ही रहने दो. एंड अगर मार्केट इसके ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल अगर ब्रेकआउट दे देता है देन आपका हमारा जो ट्रेड का जो हाइपोथेसिस है वो इनवैलिडेट हो सकता है एंड वहाँ पे आपको उस पोजीशन को बुक करना पड़ेगा. ठीक है, तो अगर यहाँ पे 12 o'clock के आसपास या 1 o'clock के आसपास यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिल जाता है तो देन ये जो आपने जो यहाँ पे जो ट्रेड स्ट्रक्चर इनिशिएट किया है दैट इज अ बुल कॉल स्प्रेड, सॉरी बेयर कॉल स्प्रेड, तो देन दैट वुड बी गिविंग ओनली 25 to 30% ऑफ इट्स मैक्स लॉस. तो अगर आपका 0.5% भी आपका जो लॉस है फिक्स्ड लॉस है तो देन आपका लॉस जो यहाँ पे ब्रेकआउट होने के टाइम पे मोस्ट प्रॉब्ली 0.2 0.25 के आसपास चलता रहेगा. तो यू कैन टेक दैट लॉस एंड यू एग्जिट बिकॉज यहाँ पे 15 मिनट्स का कैंडल पे अगर ब्रेकआउट मिलता है इसके ऊपर then our trade hypothesis is invalidated. So similar situation on the downside, यहाँ पे अगर 23,900 के आसपास अगर मार्केट आता है तो then probably trade a 24,000 put एंड 24,000 पुट्स को हम सेल कर सकते हैं एंड 23,900 पुट्स को हम लोग बाई कर सकते हैं. थोड़ा ये स्लाइटली इन द मनी वाला जो क्रेडिट स्प्रेड है बिकॉज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 24,000 के ऊपर मार्केट एक्सपायरी देगा. ठीक है, नाउ इफ यू डोंट वांट दिस काइंड ऑफ एन अग्रेसिव स्प्रेड यू कैन स्टिल ट्रेड 23,900 का एंड 23,800 का. 23,900 पुट स्प्रेड, 23,900 एंड 23,800 का हम एक बुल पुट स्प्रेड इनिशिएट कर सकते हैं. इसको सेल किए एंड इसको बाई किए. नाउ यहाँ पे इट डजेंट मैटर अगर आपको बुलिश स्ट्रक्चर्स इनिशिएट करना है, यू कैन इनिशिएट यूजिंग अ पुट क्रेडिट स्प्रेड और यू कैन इनिशिएट अ कॉल डेबिट स्प्रेड. कॉल डेबिट स्प्रेड भी हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं. 23,900 कॉल को हम लोग बाई कर लिए एंड 23 या 24,000 कॉल्स को हम लोग सेल कर लिए. तो यू कैन डू दिस एज वेल, डजेंट मेक एनी डिफरेंस एट ऑल. बट रेशियोज को अवॉइड करो, नेकेड ऑप्शंस को अवॉइड करो. टुमारो ट्रेड विथ स्प्रेड्स बिकॉज द रीजन इज मार्केट हैज गॉट अ लॉट ऑफ स्पेस टू मूव विथ रिलेटिव इन रिलेशन टू द प्रीमियम. मतलब ये जो 200 पॉइंट 250 पॉइंट नीचे का स्पेस है एंड 250 पॉइंट का ऊपर का स्पेस है, बट प्रीमियम हमको मिलने वाला है 160-170 रुपीज कल ओपन पे. तो मोस्ट प्रोबेबली 12 बजे के आसपास 150 के आसपास या 140 के आसपास प्रीमियम्स आपको मिलने वाला है विच इन नो वे जस्टिफाइज द स्पेस विच हैज मार्केट टू मूव. ठीक है, मार्केट के पास इतना स्पेस है मूव करने के लिए, उतना स्पेस को ये प्रीमियम जस्टिफाई नहीं कर पाएगा. स्पेशली दिस इज द कंबाइंड कॉल एंड पुट का प्रीमियम. ठीक है, आप सिर्फ नेकेड कॉल या नेकेड पुट को शॉर्ट कर रहे हैं, डायरेक्शनल बेट ले रहे हैं, तो डेफिनेटली द प्रीमियम्स आर नॉट वर्थ इट. सो दैट इज वाई आपको जो भी डायरेक्शनल ट्रेड लेना है डेफिनेटली ट्रेड विथ स्प्रेड्स. ठीक है, नाउ अगर मार्केट 24,000 के आसपास होवर कर रहा है एंड 170 के आसपास आपको ये मिल रहा है, लेट्स से आपको प्रीमियम्स मिल रहा है, देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन शॉर्ट 24,200 का कॉल ऑप्शन एंड 23,800 का पुट ऑप्शन. ऑफ कोर्स देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ मार्क टू मार्केट स्विंग्स. अगर आप मार्क टू मार्केट स्विंग्स को झेल सकते हैं देन यू कैन शॉर्ट दिस पर्टिकुलर स्ट्रैंगल. बट जब मार्केट नीचे आता है तो देयर विल बी गुड अमाउंट ऑफ स्पाइक ऑन 23,800 पुट्स एंड मार्केट अगर ऊपर आता है तो देयर विल बी गुड अमाउंट ऑफ स्ट्राइक ऑन 24,200 कॉल्स. तो देन यू हैव टू डू दिस रिस्क ऑन रिस्क ऑफ अप्रोच. अगर मार्केट ऊपर जाना शुरू करता है तो प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको पुट्स को ऊपर रोल करना पड़ेगा. अगर मार्केट नीचे आता है तो लाइक प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको कॉल्स को पास रोल करना पड़ेगा एंड देन समहाउ लाइक यू हैव टू मेक इट एज अ स्ट्रैडल. बट अगेन आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट आफ्टर ऑल दिस डेल्टा एडजस्टमेंट्स एंड ऑल आपके हाथ में कुछ बचेगा नहीं. सो दैट इज वाई
24,000 के आसपास अगर मार्केट होवर भी करेगा ना, तो इट इज़ नॉट इन योर risk reward proposition to actually trade a 24,000 straddle. Yes, मोस्ट प्रोबेबली 24,000 के आसपास ही एक्सपायरी होने वाला है, बट इवन 150 पॉइंट मूव भी आप 24,000 के स्ट्रैडल जो मिल रहा है 170 रुपीज़ पे, उतना प्रीमियम्स पे आप इवन 100 पॉइंट का प्रीमियम, 100 पॉइंट का मूवमेंट को भी आप झेल नहीं पाओगे. दैट इज़ वाई 24,000 पे एक्सपायरी होने के बावजूद भी आप 24,000 स्ट्रैडल शॉर्ट नहीं कर सकते हैं. सो दिस इज वॉट द प्रीमियम बिहेवियर इज एंड दिस इज वॉट द प्राइस एक्शन इज इंडिकेटिंग, बिकॉज 450 पॉइंट का हमारे पास इतना बड़ा वाला स्पेस है. Apart from these two mean reversion trades, I'm not seeing any other trades. Yes, दूसरा ट्रेड हम ले सकते हैं कि अगर मार्केट फ्लैट खुल के मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन देता है तो येस वी कैन बेट ऑन द फैक्ट दैट 24,000 ब्रीच होने वाला है, 23,950 के आसपास आने वाला है. बट देन अगेन 24,000 माइट बी एक्टिंग एज अ सपोर्ट. तो यहाँ पे ये ट्रेंड वाला ट्रेड भी, ये ब्रेकडाउन वाला ट्रेड भी मेरे को थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड लग रहा है. दैट इज वाई आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस एज वेल. सो कल के लिए 2 ही ट्रेड रहने वाला है, बिकॉज मंथली एक्सपायरी होने दो, मंथली एक्सपायरी काफ़ी वोलेटाइल रहने वाला है एंड प्रीमियम्स भी काफ़ी कम है. तो अगर 100 रुपीज़ के नीचे अगर मंथली के एक्सपायरी के दिन अगर प्रीमियम्स खुलने वाला है तो देन इट्स गोना मेक इट एक्सट्रीमली ट्रिकी टू बी ट्रेडिंग मंथली एक्सपायरी फ्रॉम शॉर्ट साइड. ठीक है. सो अपार्ट फ्रॉम दैट, लेट्स सी व्हाट द मार्केट हैज इन स्टोर फॉर अस टुमारो. आई विल सी यू आफ्टर टुमारोज मार्केट एक्शन. टिल देन, टेक केयर. बाय बाय. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.